Lesson number 16 is empathy. Empathy is the bridge to understanding others. Walk in their shoes before you judge. So we all have certain situations in our life जहाँ पे हम दूसरे लोगों को blame, criticize या judge करते हैं without knowing their situation. So empathy comes here in picture because every person is a victim of the victims. Every person has an inner child and every person operate in their life according to the behavior of their inner child, what act they have formed for themselves in the childhood. So it's not easy to judge others, criticize others without even knowing their situation. Even if you're hurt or disturbed or frustrated or angry on someone, still we have the choice to be empathetic towards them because empathy is a bridge between understanding your situation with other person's situation. So walk in their shoes before judging them. Lesson number 17 is courage. So courage does not mean that there is no fear, but courage means that taking action in spite of fear. सो डर तो सभी को लगता है, जैसे आपने ऐड देखा होगा माउंटेन ड्यू का कि डर के आगे जीत है, तो डर तो सभी को लगता है, बट उस डर के होने के बावजूद जब आप एक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड करेज. तो करेज इज नॉट समथिंग विच इज वेरी बिग, इट्स जस्ट you took action irrespective of the fear you experienced. So courage is really an action oriented thing. It is not related to any great virtue of someone. Anyone who can take action irrespective of the fear is courageous. Lesson number 18, your feelings and emotions are validated. तो आप जो भी फील करते हैं, whether good, bad, अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स, एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, जो जितने भी फीलिंग्स हैं अच्छे या बुरे, उन पे टैग नहीं लगाना है. ऑल द फीलिंग्स आर वेलकम्ड. यू कैन एक्सपीरियंस एनी फीलिंग एंड इट इज़ गुड टू फील नेगेटिव इमोशंस समटाइम्स बिकॉज इट विल मेक यू अंडरस्टैंड why, what are the reasons behind those feelings, and you can work on them. So all the feelings are welcome. So no judgment on the feelings. All feelings are validated, accepted, acknowledged, and then processed. And it can be converted into a positive emotion as well. Lesson number 19, adaptability. Adaptability is something which I have learned because I am a number 2 personality, and number 2 personality are those people who are born on 2nd, 11th, 20th or 29th of any month, and these people are really adaptable according to their situations and their environment. So adaptability was though a good virtue of mine, but sometimes it has led me to some place in my life where I have felt myself that I'm lost somewhere because I'm just trying to fit in the society, fit in a family, fit in a particular set of friends or a particular set of group of people. So adapt hona is very good, but sometimes what happens when we try to adapt according to the situation and environment, the situation or environment may or may not be positive for you. So ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर इंसान के साथ में अडेप्ट होना है, एडजस्ट होना है. Adjustability or adaptability depends on the situation, whether it is beneficial for you or not. So if you are upgrading yourself by adapting, good for you. If you are degrading yourself, your self-worth, your self-esteem, your confidence because of that adaptation, don't go for it. So adaptability is a very good virtue, but not always and not in all the situations of life. Embrace the change with an open heart because it is an ever-changing world, but don't do it at the expense of your self-esteem and confidence. Lesson number 20, forgiveness. So forgiveness for me is something which is a very liberating thing. Sometimes we are so frustrated and we are so hurt and we experience so much of negative emotions that it's really near to impossible to forgive people who have hurt us. So in that case, what we can do is we need to forgive ourselves first. I always say that forgiveness comes from within. सबसे पहले अपने आप को forgive करो, अपने inner child को forgive करो. आपने जो
पेन और सफरिंग को एक्सपीरियंस किया है, उस पेन और सफरिंग के लिए पहले अपने आप को फॉरगिव करो, उसके बाद ही आप किसी और को फॉरगिव कर पाएंगे। फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी गुड वर्च्यू, बट जब तक आप उसको मन से नहीं करेंगे तब तक उसका कोई सेंस नहीं है। सो फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी गुड वर्च्यू, इट लिबरेट्स यू फ्रॉम विद इन। जैसे आपके शोल्डर पे से कोई बहुत बड़ा किसी ने बोझ उतार के रख दिया हो, वैसा होता है फॉरगिवनेस। बट द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड देन try to forgive others. Lesson number 21 is simplicity is beautiful, and it is the ultimate sophistication in today's life. Less clutter and more peace. जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया जा रही है मिनिमलिज्म की, और people who are really successful in their life, the people who belong to top 4% of the population of the world, they all believe in simplicity and minimalism nature of life. The more they have, the less they own. जैसे कि हमारे वार्डरोब में अगर 20, 25, 30, 40, 50 पेयर ऑफ क्लोथ्स होते हैं, वैसे ही मार्क ज़करबर्ग है, एंड दे बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क हैं, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ हु काइंड ऑफ रूल द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, they own very limited pairs of clothes. So owning less and doing more is the new rule of the new world, and that is why simplicity is the new sophistication. Lesson number 22, body, mind and soul connection, or I will further elaborate it as body, mind and soul connection. So when I was doing NLP program, I got to know about the body mind connection, कि कैसे हमारी body and mind are one. जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसका कनेक्शन माइंड से है, और जब भी हमारे माइंड में कोई चल रहा है, कोई स्ट्रेस है, कोई इमोशन हमें परेशान कर रहा है, तो उसका कनेक्शन हमारी बॉडी से है. तो बॉडी एंड माइंड आर वन. This is an NLP distinction, and when I got deeper into it, I got to know that body, mind and soul, all the three are one. So body, mind, soul connection is something which I have learned. In order to live a very beautiful life, we need to be in alignment with our body, mind and soul all together. Lesson number 23, vulnerability is strength. तो हम अपने जो vulnerable side होती है, मतलब जो हमारा ऐसा इनऑथेंटिक साइड होता है, जो हमको एक्सप्रेस नहीं करना होता है इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, बट दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ आर्स. दैट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच वी डू नॉट लाइक टू शेयर विद एनीवन, बट दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. हर इंसान को क्या डर होता है? हर इंसान को यही डर होता है कि उनकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है या इमोशंस है, या जो उनका नेगेटिव साइड ऑफ देयर पर्सनैलिटी है, वो किसी और को, दुनिया को पता नहीं लग जाए. दैट इज़ आवर बिगेस्ट फियर. इससे ज़्यादा हम किसी और चीज़ से नहीं डरते हैं कि कहीं हमारे सीक्रेट्स किसी को पता नहीं लग जाए. सो देयर शुड नॉट बी एनी सीक्रेट्स. आवर लाइफ लेसन्स शुड बी लाइक दैट. इट शुड बी अ लर्निंग फॉर समवन एंड नॉट, वी शुड नॉट टेक इट एज अ मिस्टेक. So being vulnerable, being authentic about our secrets, about our shortcomings in life is a strength. तो आपकी जो shortcomings हैं, आपकी जो secrets हैं, आपकी जो dark side of the personality है, उनको accept और acknowledge कर दें and declare it to the world, and then you will feel that you are no longer a victim of your situations. You are so strong and you are so courageous. वो करेज एक अंदर से ऐसा निकल के आएगा ना, दैट यू डू नॉट फियर एनीथिंग एंड एनीवन इन द वर्ल्ड. सो वल्नरेबिलिटी इज अ स्ट्रेंथ, एंड इट अलाउज यू टू कनेक्ट ऑन अ डीपर लेवल विद द अदर पीपल. व्हेन यू शो योर वल्नरेबल साइड ऑफ योर्स टू द पीपल, दे कनेक्ट विथ यू एट अ वेरी डीपर लेवल, एंड हमको ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर चले जाएंगे अगर हमने अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखा दिया किसी को. हमारा जो एक, हर इंसान का एक जो फेस होता है, उसके ऊपर एक मास्क लगा के हम हमेशा रखते हैं. वो जो मास्क होता है, दैट वी हैव टू कैरी बिकॉज ऑफ द सोसाइटल कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग. यू शुड बी दिस, यू शुड नॉट बी दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस. ये सब जो शुड डू एंड शुड नॉट डू वाले जो रूल्स होते हैं ना, जो सोसाइटी ने बनाए होते हैं, अगर हम उस फ्रेम में फिट नहीं होते हैं, देन वी टेंड टू कैरी अ मास्क ऑन आवर फेस. और उस मास्क को हम कभी निकालते नहीं हैं, किसी के सामने शो नहीं करते हैं. वी डू नॉट शो एनी वल्नरेबल ऑथेंटिक साइड ऑफ आर्स. लेकिन जब वो मास्क उतार के फेंक दिया ना, वंस यू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड दैट सी मी एज आई एम, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का फियर नहीं रहेगा. सो वल्नरेबिलिटी इज योर स्ट्रेंथ. लेसन नंबर 24 इज पर्सपेक्टिव.
So our perspective shapes our reality and shapes our lives. So why not to choose a positive one? तो हम हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमेशा हमने एक एग्जाम्पल हमेशा सुना है कि पानी का ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है। तो लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो वैसे ही होता है, हम इंसान को देखने का नज़रिया वैसा होता है। वेदर वी see the positive side of theirs or we try to see the negative side of theirs. I know that it is not always easy to find goodness in people, to find positivity in all the situations, but yes, in most of the time, at most of the times we can experience positivity. We can see things positive from our own perspective. अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में एक जनरल जो हमारी एक फिलॉसफी होती है कि लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ फेयर, दैट इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव टू स्टार्ट विथ। दिस इज़ द लेसन नंबर 24। लेसन नंबर 25, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स बीइंग ट्रू टू आवर सेल्फ। ऑथेंटिसिटी मतलब अपने आप से तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहना। सी अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल जो हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर चीज़ में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आई मी माई सेल्फ, मैं ही बेस्ट हूँ, और बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने में लगे रहते हैं। इवन दो इफ़ दे हैड डन सम मिस्टेक, वो कुछ गलत भी करते हैं तभी वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं। What I have understood about my own life is that I have always been authentic, I have always been honest with myself. हमेशा अपने आप से तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहिए, बिकॉज authenticity is something which gives you an innate strength. आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ देता है। और जब आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं तो आपको झूठ पे झूठ बोलते चले जाना पड़ता है, एंड इट पुट सम लेयर्स ऑन योर ऑथेंटिक सेल्फ। एक जो कोर होता है ना हमारा, उस कोर पर जैसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है ना, वैसे ही हमारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा इमोशंस की लेयर चढ़ जाती है, और उन इमोशंस की लेयर को जब हम एक एक करके पील करना स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो कोर है ना, जो ऑथेंटिक कोर है, जो हम अंदर से जो है ओरिजिनल जो सेल्फ है, वो अपने आप में ही इतना ब्यूटीफुल है, इतना पायस है, इतना प्योर है, दैट वी डू नॉट नीड टू शो टू द वर्ल्ड दैट हाउ ग्रेट और हाउ बेस्ट वी आर। एज ए ह्यूमन बीइंग हम जैसे हैं हम वैसे ही परफेक्ट हैं। हमारे फ्लॉज हैं, येस हम मिस्टेक्स करते हैं, येस वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट वर्दी ऑफ एवरीथिंग, वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। हमारे अंदर है बहुत सारे फ्लॉज, बट एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ एज वी आर इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। सो हम जैसे हैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना और वैसे ही सामने वाले के सामने रखना। डोंट ट्राई टू एग्जैजरेट योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू पुट सो मैनी एक्सक्यूज एंड सो मैनी जजमेंट्स। आप किसी को इतना एक्सप्लेनेशन मत दीजिए अपने बारे में। आप जैसे हैं आप वैसे ही परफेक्ट हैं। ये मैंने अपने आप के बारे में जो रियलाइज़ किया है आफ्टर 35 years ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ is be authentic, be as you are. So this was the lesson number 25.